Good morning, dear students. Today we will be talking about the chapter 1 for class 6, Looking into the Past. It is the chapter of social science where we will be discussing about first chapter in history. Here we will be discussing all about the past, what had happened and how did it happen, and how does past help us in our present and future. So in this chapter we will be discussing regarding all those matters. So I would like to remind this is the first chapter of social science for the students of class 6. So let's move forward with the chapter. So this is the part 1 of the chapter. So I would like to remind all the students that this chapter will be concluded in two parts, in part 1 and in part 2. So this is the part 1 of the first chapter of social science for the student of class 6, that is looking into the past. And in this part we will be discussing about how does the people how did the people in the past worked, and how they worked help us in our day-to-day life or will be helping us in our future. Our first uh, topic is past. Many of us have heard about our parents or grandparents talking something that happened years ago. Something they also tell us how things were very different during those days. So, when our parents, grandparents, or any of us talk about what had happened, how those things worked, and how those days were, that is known as past. So, we will be discussing only about the past in this chapter. Second topic is studying the past. When we try to know or understand the past, we say we are studying history. The word history refers to knowledge or information regarding past event. So for in this phrase I would like to give you an example. Suppose we are watching a movie in a television, and if we are going through a movie and only the last part or the concluding part, if we watch the concluding part, we will not understand the movie. फॉर एग्ज़ाम्पल, और आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इन हिंदी, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं और वो मूवी अगर आप सिर्फ लास्ट पार्ट, मूवी के लास्ट पार्ट देखते हो, तो आप उस मूवी को सही से नहीं समझ पाते हो. what had happened in the beginning or what was in between, you will not be able to understand. इसीलिए हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं. हमें पास्ट जानना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी इवेंट हो, कोई भी आज के डेट में अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं या फिर आज की डेट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी रिलेशन पास्ट में क्या था, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए लोग या फिर हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम डांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं. डांडी मार्च के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ये जानते हैं कि उस वक्त मूवमेंट किस तरीके से चलती थी या फिर किस तरीके की मूवमेंट होती थी. तो उसी का रेफरेंस लेके आज बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्राइक्स में जाना हो या फिर किसी तरीके का मूवमेंट करना हो, जो कि हमने पास्ट में से सीखे. इसीलिए कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि हम शांतिपूर्वक कर रहे थे, महात्मा गांधी के सिद्धांत पे कर रहे थे. दैट इज़ ऑल बिकॉज वी हैव heard about the past, we have learned about the past, and because of that we are getting some knowledge and we are applying in our day to day life. जैसे कि हम जानते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में. इंडिया जब पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हुआ था, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में जब हम याद करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज भी ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज भी एक रिलेशन जो दूसरे देश के साथ है, जिसके साथ हमारा पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ, आज भी कुछ इस तरीके के रिलेशन है कि क्रिकेट मैच में भी वो रिलेशन हम दिखाई देते हैं, या फिर किसी भी तरीके के वॉर में हम वो उस तरीके के रिलेशन दिखाई देते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एविडेंस
gives us some of the impact which will also relate in our day to day life. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी बहुत सारी इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है. इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था या फिर इफ़ेक्ट दिखने को मिला था. सो दिस आर ऑल द हिस्ट्री और द पास्ट where we study something or we relate those things in our day to day life, or we take an example or we take some of the knowledge or the lesson from it, and we also run our day to day life, or in the future also in our any of the movement or any of the planning we can use this one, so that it will be beneficial for us, because what was its impact and the significance we already know about it. सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्लूज टू द पास्ट. सो क्लूज टू द पास्ट में हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमें पास्ट के बारे में हमें क्लूज देते हैं, हिंट्स देते हैं. ठीक है, जिस हिंट की बदौलत या फिर जिस क्लूज़ की बदौलत हम उस पास्ट में क्या हुआ था या फिर किस तरीके से चीज़ें होती थी उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. सो क्लूज़ टू द पास्ट इसी चीज़ में रिलेटेड है. तो आगे हम देखते हैं क्लूज़ टू द पास्ट में क्या क्या हो सकता है. अगर हम बात करेंगे क्लूज़ पास्ट की, अगर कुछ क्लूज़ है तो आर्कियोलॉजिस्ट इज़ वन ऑफ दोज क्लूज़. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक क्लूज़ की तरह हम उसको यूज़ करते हैं. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है और इनके काम क्या होते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं. ओके, सो पीपल कैनॉट गो अराउंड डिगिंग अप ऑल द प्लेसेस. वी नीड some of the people who will be assisting us about this, who possess some knowledge. So there are people who do these things for us, who are known as archaeologists. So इन लोगों की काम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, चाहे वो बिल्डिंग्स हो या फिर कुछ ऑर्डिनरी चीज़ हो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्लूज़ निकाल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं पास्ट के बारे में. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं और उसमें से कुछ पास्ट चीज़ों को निकालते हैं, जिसको हम एक्सकावेशन कहते हैं. एक्सकावेशन कहते हैं जिसका निकाल के उसको क्या करना, खोज पड़ताल करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में बताना, उसको हम कहते हैं एक्सकावेशन. और जिस जगह को वो खोदते हैं, जिस जगह पे वो वर्क करते हैं, उसको कहा जाता है एक्सकावेशन साइट. सो आई होप चिल्ड्रन कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या कौन है, या फिर क्लूज़ ऑफ द पास्ट में सबसे पहले हमने आपको आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताए हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन है या फिर उनका काम क्या होता है. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ज़मीन को खोद के उसमें से कुछ एविडेंस निकालते हैं, जो एविडेंस हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है. ठीक है, एविडेंस कुछ भी हो सकती है, चाहे ह्यूमन बॉडी, उसके स्कल्स वगैरह हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बिल्डिंग हो, जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छिपा रहता है. और इसको जो प्रक्रिया होती है इसको एक्सकावेशन कहा जाता है. और जिस जगह पे जो साइट में इसको किया जाता है उसको एक्सकावेशन साइट कहा जाता है. ओके चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, और क्लूज़ टू द पास्ट में दूसरा क्लू हम पढ़ते हैं हिस्टोरियंस. अब ये हिस्टोरियंस कौन होते हैं. हिस्टोरियंस आर द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री एंड हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन एनी ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सटेंसिव रिसर्च करके, हिस्ट्री पढ़ के उसके बारे में आपको कुछ निचोड़ देने वाले लोग जो होते हैं उसको हम हिस्टोरियंस कहते हैं. ठीक है, तो ये हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो ज़्यादातर बुक्स लिखते हैं लोगों को इवेंट के बारे में या फिर पास्ट के बारे में, पास्ट में जो भी इवेंट हो रही थी या फिर हो रहा है, हो रही थी, या फिर जिस इवेंट के बारे में, वही सारी चीज़ें ये बतलाते हैं. ठीक है, और ये हिस्टोरियंस है. हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में अंतर है. आर्कियोलॉजिस्ट फील्ड वर्क करते हैं और ये जो हिस्टोरियंस है ये कहीं ना कहीं लिख के, रिसर्च करके, लिख के अपने जो भी है बातों को व्यक्त करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 in which we discussed about some of the important things related to past, and in next part we will be coming up, I will be coming up with different topics. So till then you go through this topic
watch the video properly, and if you have any type of questions, then you can write on the comment box, which I'll be solving for you. And wait for the second part, and I will come up with some of the informative informative video for you. Stay safe and stay healthy. Thank you.